So today we will talk about the anomalous, sorry, the important trends and anomalous behavior of carbon. So what we know actually about carbon? We know that the carbon is actually a black colored solid and it's a very good non-metal and it has atomic number 6 and atomic mass 12 and it has three isotopes in nature: carbon 12, carbon 13, and carbon 14. Among these three, the carbon 14 is radioactive in nature and it has electronegativity value of 2.5 and the atomic radius is 77 picometer and its first ionization enthalpy value is 1086 kilojoule per mole. And the last point is electronic configuration. You already know that is helium configuration, then 2s2 2p2. Now the question arises that why we are observing these facts about carbon. So let's see the electronic arrangement of carbon atom. So in the 2s orbital and 2p orbital of carbon, the 2s orbital holds two electrons which are paired, and the p orbital 2p orbital holds two unpaired electrons as I shown. Okay, but when the carbon atom tends to form the bond, so it makes some changes in its electronic configuration. That means the electron from the 2s orbital jumps from it and goes in the empty orbital of 2p shell. So now you have four unpaired electrons, 2s1 and 2p3. All electrons are unpaired. When these subshells hold only one unpaired electron, they get mixed together and they form new orbitals of same energy and they are called sp3 orbitals as I shown. So it is called the hybridized state of orbitals. What is the meaning of hybridization and why it happens? We will discuss in the unit chemical bonding. So you can see that now we have four unpaired electrons, and that's why carbon has covalency of 4 because it will use its all four unpaired electrons to form four covalent bonds. And the question arises that why the carbon is not able to extend its covalency. The simple reason for this fact is absence of d orbital, because carbon atom does not have empty d orbital, so it can't extend its covalency. Okay, now what are the unique features of carbon? So carbon atom has very small size and it has very high electronegativity 2.5. Okay, and third is that it has high ionization enthalpy mass. It is difficult to ionize the carbon atom. And the fourth one is unavailability of d orbitals. So these four properties make the carbon a unique element, and this make the carbon chemistry very interesting. Now we will talk about the bonding ability of your carbon atom. So carbon has unique ability to form p pi multiple bonds with itself and with other atoms of small size and high electronegativity. इसका मीनिंग क्या है कि जो कार्बन का एटम होता है और जो कार्बन एटम के जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाने में जो है क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं. ठीक है, सो बिकॉज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड वेरी इजीली विद इट्स ओन एटम्स, यानी कार्बन जो है वो अपने ही एटम के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड
बना सकता है, और वो इस तरह की पाई बॉन्ड जो है वो दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है, अगर वो एटम्स जो हैं वो साइज में छोटे हों एज कंपेयर टू कार्बन, एंड दे हैव आल्सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी अगर आपका जो सेकेंड एटम है वो साइज में काफ़ी बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी जो है कम है, तो वो अच्छे से बॉन्डिंग आपके कार्बन आइटम से नहीं कर पाएगा। ठीक, सो वी हैव सम एग्जांपल्स दैट यू कैन सी दैट दिस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। देखिए जो दो बॉन्ड है बिटवीन द टू कार्बन आइटम्स, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड इज पाई बॉन्ड। नेक्स्ट इज यू कैन सी द थ्री बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन आइटम। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर थर्ड इज द कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा। फिर एग्जांपल 4 है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सल्फर। तो कार्बन सल्फर के बीच जो है यहाँ भी दो बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा। एंड द लास्ट इज द नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कैन मेक थ्री बॉन्ड विद द नाइट्रोजन। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, सल्फर और नाइट्रोजन, all these three atoms have small size, and all these three have good amount of electronegativity. That's why they can make bond easily with the carbon atom. Okay, but the heavier elements do not form p-pi bonds because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping. तो देखिए जो आपके बड़े एटम्स होते हैं, जैसे कि आपका लेड है, आपका मरकरी है, ठीक है, या फिर जितने भी आपके जो एटम्स हैं जिनका साइज बड़ा है, तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, और जो बड़े साइज के ऑर्बिटल्स होते हैं वो काफ़ी डिफ्यूज होते हैं, काफ़ी एक्सटेंडेड होते हैं स्पेस में। सो दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ओवरलैप विद ईच अदर एंड विद अदर atoms, and that's why they are not able to make p-pi bonds strongly. Now we will talk about a very unique property of carbon, that is catenation. Catenation का देखिए सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म चेन्स ऑफ एटम्स। ठीक है, सो द कार्बन हैज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी to form bond with itself and give rise to a single large structure or chain. तो जो कार्बन एटम होता है वो अपने आप से, अपने ही सेम एटम से जो है बॉन्डिंग करके एक जो है सीरीज, एक चेन जो है एटम्स की बना सकता है। ठीक है, तो कैटेनेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, यानी जब एटम्स आपस में ही बॉन्डिंग करके एक एटम्स की चेन बनाए तो उसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो देखिए यहाँ मैंने तीन जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, जहाँ से आपको समझाया गया है कि कार्बन जो है वो कई टाइप के चेन बना सकता है। पहला है आपका स्ट्रेट चेन, जहाँ पे सारे एटम्स लीनियर फॉर्म में होते हैं। सेकेंड है आपका ब्रांच चेन, जहाँ पे आपके एटम्स जो हैं वो चेन में ब्रांच भी बनाते हैं। और लास्ट है आपका रिंग चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक चेन जो है वो क्लोज होके एक रिंग का फॉर्म बना लेती है, तो उसको हम लोग रिंग चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अगर किसी एटम को कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करनी है तो उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो पहला रिक्वायरमेंट है स्मॉल साइज ऑफ एटम, एटम का साइज छोटा होना चाहिए। नंबर 2, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। एंड थर्ड इज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जब बॉन्ड बने उन एटम्स के बीच में तो उनको तोड़ने में एंथैल्पी यानी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगे। ठीक है, तो कार्बन के पास ये तीनों जो है कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए कार्बन जो है वो आसानी से जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो अमंग द ग्रुप 14 एलिमेंट्स द टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो कैपेसिटी है इस चीज़ को शो करने की वो डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज जब हम ग्रुप में जाते हैं नीचे तो एटम्स का साइज इंक्रीज होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और बॉन्ड एंथैल्पी भी जो है वो डिक्रीज होती है. सो कार्बन हैज द बेटर कंडीशन to make bond with its own atoms, and the least one is your tin, and lead is not able to make bond with its own atoms because of its large size. तो अगर आप देखिए ये जो यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी की, तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी चाहिए एनर्जी? 348 किलो जूल पर मोल. यानी अगर आपको 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के, तो आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अब देखिए जो आपका सिलिकॉन है उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 297, जर्मेनियम के लिए 260 एंड टिन के लिए 240. अब देख रहे हैं कि देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, यानी ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं. तो हमेशा याद रखिए अगर बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, अगर बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम है तो वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है. डन. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देखिए कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करेंगे. तो पहले एक बार फिर से रिवाइंड कर लें कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं. सो एलोट्रॉपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 or more different forms in the same physical state known as allotropes of the element. तो एलोट्रॉपिज्म जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, जहाँ पर आपका एक एलिमेंट जो है वो कई डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो उस हिसाब से एलोट्रॉप्स क्या हुए? द एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट in which the atoms of the elements are bonded together in a different manner. यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट. और वो बनते क्यों हैं? वो इसलिए बनते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स के एटम हैं उनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में वो डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन के एलोट्रॉप क्यों होते हैं? तो इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड p pi बॉन्ड फॉर्मेशन. द कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. तो कार्बन जो है वो इजीली जो है अपने ही एटम से कंबाइन होकर चेन बना सकता है और वो आसानी से अपने ही एटम से पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है. तो इसकी इस एबिलिटी की वजह से वो एलोट्रॉप्स बना सकता है. तो वैसे तो एलोट्रॉप्स तो वैसे कार्बन के कई माने जाते हैं, बट 3 जो है वो मेन है. पहला है ग्रेफाइट, सेकंड है डायमंड एंड थर्ड है फुलरीन्स. और इन तीनों के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट दीज एलोट्रॉप्स. तो पहले हम बात करते हैं डायमंड के बारे में. तो डायमंड जो है वो आपको पता है कि ये सॉलिड होता है और इट हैज़ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर. अगर हम कलर की बात करें तो जनरली डायमंड्स जो होते हैं वो टिपिकली येलो होते हैं या ब्राउन होते हैं. कभी कभी का कलर ग्रे भी होता है और कभी कभी ये कलरलेस भी होते हैं. ठीक है, बट द मल्टीपल कलर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. जितने भी आपके डायमंड्स पे स्टडी करी गई है वो पाया गया है कि डायमंड्स जो है वो बहुत सारे कलर्स में हो सकते हैं. रेड, पिंक, ब्लू, येलो. ठीक है, बहुत से कलर्स पॉसिबल हैं. अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि डायमंड में तो सिर्फ कार्बन होते हैं, तो ये कलर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सो इट्स अ मिस्ट्री एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट. तो डायमंड की डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.5 to 3.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये इसकी रेंज है डेंसिटी की. और डायमंड का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर. यानी आप प्रेशर वेरी करेंगे तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज होगा. ओके, अब हम बात करते हैं डायमंड की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की.
ठीक है। तो जो डायमंड जो होता है उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और आपके डायमंड में जो कार्बन होता है, हर कार्बन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसका मीनिंग ये है कि जो कार्बन एटम है आपका वो आपके दूसरे कार्बन एटम से सिंगल सिंगल टोटल 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। अब जब कभी आपका कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो वो एक टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर करता है, ठीक है। तो डायमंड में जो कार्बन कार्बन जो होते हैं बॉन्ड्स, उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। तो इस तरह से जब बहुत सारे कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, सो दे फॉर्म अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच imparts lot of hardness to the diamond crystal। ओके, तो ये देखिए मैंने बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया है, सिंपल सा फिगर है ये फॉर डायमंड कि देखिए आपका जो एक कार्बन एटम है वो 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे 3 कार्बन जो एटम्स है इनके बीच का एंगल निकाले तो इनका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये इसको हम लोग टेट्राहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही कॉमन है हमारे लिए, क्योंकि ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन योर पेंसिल लेड। ग्रेफाइट से आप एक्चुअली जो है आप लिखते हैं पेंसिल से। एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स इन मैनी टूल्स एंड मशीन्स। और डायमंड की तरह जो ग्रेफाइट है उस वो भी जो है क्रिस्टलन होता है नेचर में। अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर जो है वो या तो आयरन ब्लैक होता है या फिर ये जो है स्टील ग्रे होता है कलर में। और अगर इस पे जब लाइट जब ट्रांसमिट होती है थ्रू द ग्रेफाइट तो इसका कलर जो है वो ब्लू अपीयर होता है। इसकी डेंसिटी जो है वो 2.09 से लेकर 2.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। इसका मतलब यह है कि डायमंड जो आपका ग्रेफाइट है उसकी डेंसिटी डायमंड से कम होती है, इट इज लेस डेंसर देन डायमंड। इसके अलावा ये भी आप चीज़ जानते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें जो आपके कार्बन आइटम्स हैं वो बहुत सारे जो है वो 2 डायमेंशनल लेयर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। यानी जो कार्बन में जो ग्रेफाइट की जो लेयर्स होते हैं, शीट्स जो होती हैं वो एक के ऊपर ओवरलैप होती हैं और इनकी भी जो अट्रैक्शन होता है कौन सा अट्रैक्शन होता है? वैन डर वाल अट्रैक्शन होता है। और 2 शीट्स के बीच जो गैप होता है उसका डिस्टेंस होता है 340 पिकोमीटर। सो ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर आप एक शीट को अगर आप स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उस शीट में जितने भी कार्बन एटम्स हैं दे टुगेदर दे आर फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल रिंग। यानी एक शीट पे बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग फॉर्म होते हैं। और जैसे कि आपका जो डायमंड था, डायमंड में क्या था कि वहाँ पे हर एक जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। यानी वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, उनका जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको ये कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है इट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी delocalized over the whole sheet and it will be responsible for the electrical conductivity, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 फिगर्स बनाए हैं। पहला है आपका जो है जो ग्रेफाइट की शीट है उसको दिखाने के लिए कि अगर शीट को आप वर्टिकली सामने रखें
तो आपको बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स दिखेंगे एंड विच यू कैन से दैट इट इज लाइक हनीकॉम स्ट्रक्चर। और यहाँ मैंने सेकंड फिगर में आपको दिखाया है कि जो लेयर्स होते हैं आपके ग्रेफाइट शीट्स के, उनके बीच जो है वैन डर वाल इंटरेक्शन है। दिस रेड डॉटेड लाइंस आर एक्चुअली शोइंग द वैन डर वाल इंटरेक्शन एंड द गैप इज एक्चुअली 340 पिकोमीटर। अब देखिए लास्ट आपका बचा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए मैं एक वीडियो अभी अपलोड करूंगा, यू कैन सी एंड स्टडी अबाउट फ्लोरीन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।